Question number 145, say Mohammad Hanifa. Honorable member, honorable minister. Sir, answer has been Yes. Honorable member. शुक्रिया ऑनरेबल सर। सर, कारगिल लद्दाख का पॉपुलेशन वाइज बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट जो है सर्दी में, विंटर में 5 महीने के लिए रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट ऑफ रहती है और पिछले 50-60 सालों से वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी का डिमांड होती रही है। वहाँ पर एक छोटा एयरपोर्ट बनी है, वो भी पिछले 30 सालों से बनी है, वो भी ऑपरेट नहीं है। तो उड़ान स्कीम के तहत 2 बार उस एयरपोर्ट को लिया गया है, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ एयर सर्विस शुरू नहीं है। मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि पिछले 2 साल पहले करगिल में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे वहाँ पे कंडक्ट हुई थी, लेकिन अभी तक उस सर्वे का कोई अता पता नहीं है। क्या वो सर्वे कंप्लीट हुई है? अगर हुई है तो उसका स्टेटस क्या है? और इसमें आंसर आपने दिया है कि वहाँ पे एक जगह का नाम दिया है, वहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो उसके अलावा और भी जगह है वहाँ पे। क्या वहाँ पे सर्वे कंडक्ट करके एयरपोर्ट बनाने का आपका प्लान है? Speaker sir, the government of India has always been interested in opening an airport there in Kargil, sir, with civilian interest. We want civilians to have access to air connectivity from Kargil. And regarding this, we have been trying from our side. The administration, Ladakh administration, has identified certain sites, which is the process where they send us the sites and we do the inspection. And accordingly, Waka Kargil, Turtuk, Dikshit, Nyoma, Padum, Janskar. These are some of the sites which have been offered to us, and we have done thorough inspection, thorough site studies, surveys have been done. But after all that also, because the terrain is so challenging in Kargil, it was found to be very difficult to operate an airport from these sites. And the other option that we have is the existing Kargil airport, which is a defense airport, sir. So because we want the civilians to have access to the air services, we explored the idea of why not run the civilian aircrafts from the existing defense airport only. And that is where the International Civil Aviation Organization, ICAO, came into picture. We went to ICAO and we said, why don't you inspect this airport and let us know if there can be civil operations also, and they came into the picture. And once they also did the survey, sir, which is I think what the honorable member is also talking about, they also conducted the study and they also said that it is very difficult to run from here, which is for the narrow body aircrafts, which are A320 and B737. These aircrafts can't run from there. But we are in the interest that the airport should run, the civil airport should run. So, and we have put it under the RCS scheme also, sir. We have been trying more and more with the airlines also to run specific routes. But the challenge here is that with the existing airport, even if it is defense, if you want to run civilian aircrafts, we can only run 19-seater aircrafts. So we will work out with the airlines, sir. It is there under the RCS scheme also. 9.2 crore rupees have also been sanctioned. 30 lakh worth of small works like electrical works have also been done there, sir. If some airline says that we are ready to provide connectivity from Kargil to Srinagar or Jammu, then we are ready to do the remaining work and provide it for the civilian purpose also, sir. Honorable member supplementary, please. सर, ये उड़ान स्कीम में 2 बार इसको मिनट बैठिए। माननीय आप सब नए सदस्य भी आए, हमें सदन का डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। आप सप्लीमेंट्री पूछें, उसके बाद आपको देंगे। सर, ये एयरपोर्ट मेरे ख्याल से डिफेंस का नहीं है, ये सिविल एयरपोर्ट है, ये डिफेंस को लीज पे दिया गया है। तो मेरा यही है कि उड़ान स्कीम में इस एयरपोर्ट को 2 बार शामिल करने के बावजूद अभी तक वहाँ पे कोई सिविल एयर सर्विस शुरू नहीं किया गया। क्या इस पे कोई 50-60 सीटर का जो एयरक्राफ्ट को जल्दी से शुरू करने का क्या आपका प्लान है? सर, ये पहले जैसे AI के पास था, फिर बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी एस्पेक्ट इन कश्मीर एंड लद्दाख एरिया, इट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू डिफेंसर। एंड जो 50 सीटर के एयरक्राफ्ट की बात करें, अभी मैंने बताया सर, जो एग्जिस्टिंग कारगिल का एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो रनवे है
वहाँ की जो टेरेन डिफिकल्टी है, लैंडिंग टेक ऑफ के जो प्रोटोकॉल्स है, उसके हिसाब से 19 सीटर एयरक्राफ्ट की हो सकता है सर। उसी के बारे में हम एयरलाइंस के साथ भी प्रयास भी चल रहे हैं RCS उड़ान स्कीम के तहत। और माननीय सदस्य ने कहा कि 2 बार उड़ान स्कीम है, पर हमने 3 बार भी उसको कराया सर, और भी प्रयास करते रहेंगे कि आगे यहाँ से एक सिविलियन एयरक्राफ्ट की शुरुआत हो। ऑनरेबल मेंबर श्री मियां अल्ताफ। सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से स्पेसिफिक ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं करगिल एयरपोर्ट के बारे में कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं आता, और आज भी कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है। एक पूरा रीजन जो है वो कटा हुआ होता रहता है। 7 महीने तमाम सप्लाईज वहाँ की बंद होती हैं, माइनस टेम्परेचर वहाँ रहता है, तो कोई उनका और नहीं है ज़रिया मुल्क के साथ मिलने का। लद्दाख है तो वो भी वहाँ से बहुत दूर है। कश्मीर वैली जो है वो 7 महीने बंद रहती है। तो स्पेसिफिक आप मंत्री साहब ये बताएं कि आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी आपकी एयरलाइंस हैं, ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, ये हुकूमत की ज़िम्मेवारी है कि वो किसी से भी बात करे, लेकिन 6 महीने की वहाँ सर्विस जो है वो विंटर्स में वहाँ लोगों को दे। इसके लिए मैं ये आपकी ज़ाती मुदाखलत चाहता हूँ, पर्सनल इंटरवेंशन चाहता हूँ कि आप इनका ये मसला हल करें। थैंक यू सर। सर, हम माननीय सदस्य की चैलेंज को समझ सकते हैं, और वहाँ की जो लोगों की भी जो समस्या है, जो कनेक्टिविटी का, तो वो सब समझ सकते हैं सर। उसी के तहत हमने बोला था कि हमारी तरफ से पूरी प्रयास चल रही है कि कारगिल से एक एयरक्राफ्ट की शुरुआत हो, पर ऐसा नहीं है सर कि छोटे एयर स्ट्रिप मिल जाए और बड़ा एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड हो। सेफ्टी का भी इशू रहता है, तो हमें पूरा प्रोटोकॉल्स फॉलो भी करना पड़ेगा। तो उसी के तहत जो एग्जिस्टिंग एयर रनवे की जो लेंथ है, वहाँ पे उसके हिसाब से 19 सीटर का ही वहाँ पे लैंडिंग या टेक ऑफ हो सकता है। तो उसके तहत जो माननीय सदस्य ने बोला, हम पूरी तरह से पूरी लगन के साथ हम प्रयास करेंगे, एयरलाइंस के साथ भी बात करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम करना चाहेंगे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।